Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. In today's video we are going to talk about the University of Turin. University of Turin is a public university of Italy and it is one of the top university of Italy. It offers a wide range of scholarships. So in this video I'll guide you about the whole process of admission. First of all, let's learn about the university first, then we'll talk about the programs, and then we'll start our application process. Its application process is completely free. You don't have to pay any application fee. So let's get started. Okay, so University of Turin is a public university and it has been ranked at the position of 219th in the world. It was built in 14th century. When we talk about it acceptance rate, so it's 40 to 50%. And then if we talk about the minimum CGPA required for admission, so that's 2.5, but applicants with 2 CGPA can also apply, but the chances of their acceptance is like really low. Now let's start our application. The link for this application will be given in the description of the video, so you guys can click on that link and the link will take you to the application screen. First of all, we have to register ourselves, so we'll click on the sign in/register. Here you will have to type your email address. Then we'll continue. So if you are a new user, you are registering first time, then here you can see it's written, if you are a new user, click on the button below to get going. So we'll click on the button that says send a one-time link/register. So after clicking on this button, the site will send us a link on our email address. So as you can see, we have received the link and we'll click to register button. And then from here we have to approve. After approving, here you can see your data, your name and email address is already written here. Then you can write your phone number over here, but it's optional. अगर आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते ना लिखें. And then you have any reference code, you can write it here. Then you will tick over here that I have read the privacy policy, and then we'll continue. Now here you can search the programs that you want to apply to. यहाँ पे आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, जिस डिग्री में भी आप लोगों ने अप्लाई करना है या आप अप्लाई करना चाहते हैं. So here you will write the name of your degree. For example, I want to apply in biology. From here you can choose undergraduate degree, postgraduate degree or postgraduate degree 5/6 year postgraduate degree. So if you want to apply for an undergraduate degree, you will click here. If you want to apply for masters, you will click here. And from here we'll choose full time, and we don't have to choose distance learning and e-learning, since we want to take our classes in person and we want to go to Italy and take classes physically. So आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि हमने इटली जाके ही क्लासेस लेनी है. फिर आप लैंग्वेजेस में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करोगे क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा तो हम उस डिग्री के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे. हम जस्ट एलिजिबल है
इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाने वाली डिग्रीज़ में। पोस्ट ग्रेजुएट हमने चूज़ किया, फिर एकेडमिक ईयर 2024 है फुल टाइम, और फिर इंग्लिश, और फिर यहाँ से आप फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। तो हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस बायोलॉजी में आ गए हैं, क्योंकि मैंने बायोलॉजी में सर्च किया था, तो बायोलॉजी में हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं। इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप सारे प्रोग्राम्स एक साथ ही देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स गिवन हैं, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ से देख लेंगे कि अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास ये 2 प्रोग्राम्स हैं। फिर मास्टर्स में हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बीए है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कल्चरल का है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडी, इन्वायरमेंटल के भी है, लीगल स्टडीज़ भी है, जियोग्राफी भी है, मटेरियल साइंस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, डेटा साइंस भी है। आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से ऊपर भी सर्च करके आप स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से जिस तरह के आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अप्लाई नाउ का बटन गिवन है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे सारी लिखी हुई आ जाएगी। इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट भी है लिखी होगी, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। अब आप एक डिग्री से ज़्यादा में भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 डिग्री कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये चूज़ किया और एक हम इसके साथ दूसरी डिग्री भी कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी फॉर न्यूरोसाइंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 2 चूज़ कर लिए हैं। अब ये चूज़ करने, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव रीच्ड द लिमिट भी लिखा जा चुका है। अब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो है प्रोफाइल। प्रोफाइल में फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप अपना सेकंड फैमिली नेम जो आपका सेकंड नेम है वो लिखोगे। मिडिल नेम अगर आपको कोई है वो लिख लो। यहाँ पे आप जेंडर चूज़ करोगे, मेल या फीमेल। यहाँ पे आप जो है आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट टाइप पहले चूज़ करोगे। अगर आपका पासपोर्ट बन चुका है तो आप यहाँ पे पासपोर्ट चूज़ कर लो, और अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड चूज़ करके पासपोर्ट नंबर वाला ब्लैंक्स जो है वो सारे आप एम्प्टी छोड़ दो, और नीचे आईडी कार्ड में जो है ये फिल कर लो। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट चूज़ कर लो, और यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और जहाँ पासपोर्ट आपका बना है, अगर आप पाकिस्तान से हो आपका यही बना होगा तो आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लोगे। फिर आप आओगे नीचे, हमने पासपोर्ट चूज़ किया था तो हमें आईडी कार्ड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो फिर ही आप आईडी कार्ड ऐसे यहाँ से चूज़ करके नीचे फिल कर लें। फिर आप आओगे बर्थ पे, तो यहाँ पे आपने अपनी तारीख़ी पैदाइश लिखनी है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे लिख लो, जहाँ की आपकी पैदाइश है वहाँ वो लिख लो, वो कंट्री लिख लो। फिर आप नीचे लिख लो प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आप पैदा हुए थे वो सिटी लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस्लामाबाद आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने अपनी फॉर्मल फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। फॉर्मल फ़ोटो आपकी जो है आप फॉर्मल ड्रेस में, और प्रॉपर जो है बैकग्राउंड भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आप किसी भी शॉप में जाके जो है आप वहाँ से फ़ोटो खिंचवा के उन फोटोग्राफर से जो है आप सॉफ्ट में ले लो, तो वो आप अपनी सारी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। फिर ये फिल करने के बाद आज आप आ जाओगे कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट्स में फिर आप अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल लिखोगे। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस पहले से लिखा होगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ। फिर आप अपना यहाँ पे स्काइप का जो आपका अकाउंट है उसके बारे में लिखोगे। स्काइप की जो आपकी आईडी है वो यहाँ लिख लोगे, और यहाँ आपने ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है। जिस तरह हम 0 की बजाय +92 पाकिस्तान के लिए लिखते हैं, तो आप यहाँ पे 0 नहीं बल्कि +92 लिखेंगे।
फिर आप यहाँ से आ जाओगे होम यूनिवर्सिटी पे। होम यूनिवर्सिटी में जो है आप अपने स्कूल की डिटेल्स भी लिख सकते हो। अगर आप इंटर के हो तो आप फिर अपने कॉलेज का नाम लिखोगे। अगर आप जो है मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप नीचे जो है अपना डिपार्टमेंट लिखोगे, फैकल्टी का नाम लिखोगे। फिर नीचे जो है आप अपना कंट्री चूज़ करोगे जहाँ भी आपने अपनी डिग्री हासिल की है। फिर यहाँ आप अपना लेवल ऑफ़ एजुकेशन चूज़ करोगे। लेवल ऑफ़ एजुकेशन में जो है आपने अगर बैचलर किया है तो आप यहाँ पे बैचलर चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आप अपने फील्ड लिख लोगे, जिस भी फील्ड में आपने जो है डिग्री हासिल की है वो यहाँ पे आप लिख लोगे। फिर आप अपने प्रोग्राम का नेम लिखोगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है कंप्यूटर साइंस लिख लो, बायोलॉजी में किया है बायोलॉजी लिख लो। जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम नेम था वो आप यहाँ पे लिख लो। फिर आप यहाँ पे लिखोगे जब आपने स्टडीज़ स्टार्ट की थी तब क्या डेट थी, तो वो आप यहाँ लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे अपना CGPA लिखोगे। आपका 4 में से जितना भी CGPA है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप आ जाओगे एजुकेशन पे। एजुकेशन में जो है आप अपनी सारी एजुकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप यहाँ पे अपने मैट्रिक की एजुकेशन भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप चूज़ करोगे पहले अदर क्वालिफ़िकेशन चूज़ करके आप ये सारे ब्लैंक्स जो है अपने मैट्रिक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही फिल करोगे। यहाँ पे आप अपना स्कूल नेम लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे प्रोग्राम नेम अगर आपका है या नहीं है तो फिर आप उसी तरह ही छोड़ दे। अगर नहीं है फिर आप क्वालिफ़िकेशन डिग्री यहाँ पे लिख लोगे। डिग्री आपकी जो होगी वो SSC होगी, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। फिर आप जो है इसको आप जो है एम्प्टी छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट जो है वो लिख सकते हो। इशूड बाय में आप जो है अपना बोर्ड लिख सकते हो, बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि आप स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ कब हुई थी मैट्रिक की, वो लिख लोगे। और जब आपने ख़त्म की थी मैट्रिक की स्टडीज़ वो यहाँ पे आप लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे लेंथ लिख लोगे कि कितने ईयर्स में किया है। मोड ऑफ़ स्टडी लिख लोगे, तो मोड ऑफ़ स्टडी में हमारा जो है फ़ेस टू फेस ही होगा, डिस्टेंट लर्निंग नहीं होगा। फिर पाकिस्तान आप चूज़ करोगे। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में पढ़े हो, इंडिया में पढ़े हो, इंडिया चूज़ कर लो। अफ्रीका में पढ़े हो, अफ्रीका चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आप स्टडी लैंग्वेज लिखोगे। हमारी जो है इंग्लिश ही होती है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हमारी बुक्स इंग्लिश में होती है तो हमारी इंग्लिश में ही होगी। फिर आप जो है अपने ग्रेड यहाँ पे लिख लो, जब आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक जो है वो करोगे, और यहाँ पे आप अपना FSC या A लेवल्स जो है उसकी सारी डिटेल लिख लोगे। उसके लिए भी आप यहाँ से चूज़ करोगे अदर क्वालिफ़िकेशन चूज़ करके आप ये सारा फिल कर लोगे अपने कॉलेज और डिग्री के अकॉर्डिंग ही। फिर जो है आप यहाँ पे मज़ीद भी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई डिप्लोमा है या आपके पास कोई ट्रेनिंग है, वो सारे जो है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जिस तरह आप ये मेन्यू में देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर प्री एजुकेशन है, कोई वोकेशनल है, कोई इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इससे आपकी जो है एप्लीकेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनेगी। फिर आप जो है अपनी लेटेस्ट डिग्री के बारे में लिखोगे जो आप अटैच करने जा रहे हो, तो वो आप यहाँ से सारे चूज़ कर लोगे कि आप क्या क्या अटैच करने वाले हो। बैचलर्स डिग्री आप मार्क करोगे। फिर ट्रांसक्रिप्ट मार्क कर लोगे। फिर सिलेबस जो है, कोर्स टिप्स डिस्क्रिप्शन जो है वो मार्क करोगे। और फिर अलग अदर क्वालिफ़िकेशंस आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या होता है। फिर जाना है आगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेशन हमारा लैंग्वेजेस का है। इसमें सबसे पहले आप अपनी मादरी ज़ुबान यानी आपका नेटिव लैंग्वेज लिखोगे। अगर आपका उर्दू है उर्दू लिख लो, सिंधी है सिंधी लिख लो, पश्तो है पश्तो लिख लो, पंजाबी है पंजाबी लिख लो।
वो लिखोगे और फिर आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करके न्यू लैंग्वेज डालोगे, जो कि हम इंग्लिश डालेंगे। ये आपने लाजमी डालनी है। अगर आपके पास सर आइल्स है या टॉफिल है तो ये आप लाजमी ही डालोगे, क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आपके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी प्रोफिशिएंसी होगी वो आप लिख लोगे। वो आपकी आइल्स की सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, वो आप वहाँ से देख के लिख लोगे। फिर आप जो है सर्टिफिकेट चूज़ करोगे कि आपने कौन सा किया है, आइल्स किया था, टॉफिल किया था, CPE या CAE किया था, वो आप चूज़ कर लोगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप अदर चूज़ करके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी अपलोड कर सकते हो, जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपना स्कोर लिख लोगे। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट ही अपलोड किया है, तो फिर आप यहाँ पे स्कोर को एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है मोटिवेशन। फिर इसमें आप जो है अपना मोटिवेशनल लेटर पेस्ट करोगे, या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। मोटिवेशनल लेटर आपका कम से कम 1000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कैरेक्टर्स मींस के ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, तो वो टोटल वर्ड्स मिला के जो फिर कैरेक्टर्स 1000 से ज़्यादा होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके 3000 होने चाहिए। 3000 से ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। ये जो है इसका आपने लाजमी ध्यान देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रेड मार्क बना हुआ है। फिर आप आओगे डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स में हमने अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे। यहाँ आगे आप देखोगे चेकलिस्ट में, फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे चूज़ करोगे कि आपको कैसे पता चला यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के बारे में। अगर आप उसे फ्रेंड्स से पता चला, फ्रेंड्स रिलेटिव चूज़ कर लो। किसी एजुकेशनल फेयर में पता चला, वो चूज़ कर लो। इंटरनेट से पता चला, वेबसाइट से, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे फ्रेंड्स ही चूज़ कर लेते हैं। फिर आप आओगे चेकलिस्ट पे। चेकलिस्ट पे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स की अपडेट है, जो भी हमने लाजमी अपलोड करनी है उनके साथ। यहाँ पे ये रेड जो है आप साइन देख सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप ये नहीं अपलोड करोगे तो आपका एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगा और आप मज़ीद आगे जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर ही नहीं सकते। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखें तो हम 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है और आपने कैसे क्या अपलोड करना है। अब अगर हम पहले आ जाए इंटरमीडिएट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे, तो यहाँ इन लोगों ने बताया है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में जो है आपको इंग्लिश जो है एटलीस्ट B1 लेवल का होना चाहिए, जो एडमिशन इंटरव्यू में आपका वेरीफाई होगा। B1 जो है बस थोड़ा मतलब कोई इतना प्रोफिशिएंट लेवल नहीं है, अच्छी खासी इंग्लिश बस आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे है कि आप जो है आइल्स भी अपलोड कर सकते हो, टॉफिल भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपका आइल्स है तो मिनिमम ईच बैंड में आपका 5.5 होना चाहिए, और टोटल भी आपका 5.5 होना चाहिए कम से कम। जितना ज़्यादा हो वो उतना बेहतर है। फिर टॉफल में भी जो है इसके 69 स्कोर मिनिमम दिया हुआ है। फिर बाकी टेस्ट के भी ऐसे स्कोर्स दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने एक बात लिखी हुई है, अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, जहाँ जो आपका आखिरी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट था, वहाँ से आप ऑफिशियल जो है एक लेटर लोगे, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहाँ पे इंग्लिश में की है, जो वहाँ से साइंड होती है। तो वो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेके सिंपली स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे, और यहाँ पे फिर आप ये चेक कर दोगे कि आई अटैच माई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। फिर आप यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा और आपका अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। फिर जो है एंट्री क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। एंट्री क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे चूँकि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने योर ओरिजिनल डिप्लोमा, मेरी जो ओरिजिनल डिग्री है वो मैंने अपलोड करनी है, अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने हैं, और अगर डिप्लोमा सप्लीमेंट है कोई तो वो मैंने अपलोड कर लेना है। तो वो यहाँ पे सिंपली मैं अपने ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, और यहाँ पे फिर मैं
ऑप्शन चूज़ कर लूँगा कि आई हैव अटैच्ड द डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट एंड अदर सप्लीमेंट ऑफ माई एप्लीकेशन। और अगर आप जो है 6th या 7th सेमेस्टर में 7th या 8th सेमेस्टर में हैं तो आप फिर ये ऑप्शन चूज़ करोगे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे पास जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए, तो आपके पास डिग्री तो होगी नहीं, तो आप जस्ट पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करके यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर लोगे। फिर आप क्रॉस करोगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे जो भी आपने अपलोड किए होंगे। फिर ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये हमने तभी अपलोड करने हैं अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है। चूँकि हमारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होते हैं तो हमें जो है यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ करना है कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। चूँकि एक्सेप्टेड लैंग्वेज में फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है और इंग्लिश है, तो हमारे इंग्लिश में ही होते हैं, तो हमें ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है पासपोर्ट और इटालियन रेजिडेंट परमिट, तो हमारे पास पासपोर्ट ही होगा, रेजिडेंट परमिट तो इटली का हमारे पास नहीं है, तो आप पासपोर्ट सिंपली यहाँ पे अपलोड करके तो फिर आप ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे कि आई हैव अटैच्ड माय पासपोर्ट एंड आई डू नॉट हैव इटालियन रेजिडेंस परमिट, क्रॉस कर देना है। फिर आप आओगे डिग्री प्रोग्राम सिलेबस पे, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। आपने जो डिग्री की होती है उसका सिलेबस होता है, मतलब वो कोर्सेज़ होते हैं जो आपने उस डिग्री में पढ़े हुए हों। ये नॉर्मली जो है आपको वेबसाइट से PDF में मिल जाता है, आप सिंपली डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर दोगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और अपने डिग्री प्रोग्राम जो है वो गूगल में लिख लो, तो आपके पास नॉर्मली सर्च में आ जाता है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा और वो जो है नहीं है वहाँ पे, तो आप फिर ये सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लोगे कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है ये डॉक्यूमेंट इशू नहीं करती, और क्रॉस कर लोगे। लेकिन प्रेफर्ड है कि आप जो है डाउनलोड करके जो है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो, वो मिल जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे होता ही होता है। फिर आप आओगे CV पे, यहाँ पे आप सिंपली अपनी CV अपलोड करोगे और यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लोगे कि आई हैव अटैच्ड CV। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन है कि मेरी जो भी चीज़ें मैंने अपलोड की है और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारा जो है जेन्युइन है, उसमें कोई फेक और फ्रॉड नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ आप सिंपली जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। अगर अभी आपका कुछ रहता हो एप्लीकेशन में पूरी फिल नहीं की हो, फिर आप सेव एज ड्राफ्ट कर लोगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे साइट पे, जो है आप देख सकते हो मेरी जो एक एप्लीकेशन है ये अभी मैंने सबमिट नहीं की, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, एक एप्लीकेशन मेरी है यहाँ पे। फिर टास्क में आप आएंगे तो टास्क पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो हमने अभी अपलोड करने हैं। तो वहाँ पे टास्क फुलफ़िल जो अभी नहीं हुए तो वो हमारे 5 हैं, ये 5 चीज़ें हमें यहाँ पे अभी अपलोड करनी है, तो ये टास्क फिर सारे जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगे। और इनबॉक्स पे आओगे तो इनबॉक्स में हमारे पास मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हमें यहाँ इनबॉक्स में रिसीव होती रहेगी। अब यहाँ पे जैसे इन लोगों ने लिखा है कि आपने मस्ट जो है अपना ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है वो आपने अपलोड करनी है अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये था हमारा एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। हम आप ही के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं, आप ही के हेल्प हो सके, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। इससे अगर हमें जो है कोई यूनिवर्सिटी से कमीशन नहीं मिलता, हमें कोई फ़ीस नहीं मिलती, हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए करते हैं। क्योंकि अगर हमारी वजह से कोई स्टूडेंट का जो है वो काम हो जाए और उनकी लाइफ बन जाए, तो एक स्टूडेंट के साथ पूरी फैमिली उनकी जो है उनकी हेल्प हो जाती है, और इससे जो है हमें ही सवाब मिलेगा। ये एक तरीके का सदका जारिया है, किसी की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप जो है प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी प्रोसेस जानना हो, किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।